What's up, guys? How's it going? Hope your Sunday and your weekend is coming along really well. It's time for another episode of Beyond the Field. Hello to Somesh, to everyone else that's joining. I hope you guys are doing well. And yeah, it should be a fun. Hello, Mr. Golam. Sandy Golam is here. I hope you're doing very well. And yeah, it's time for Irfan Pathan today. I'm really looking forward to this. Hi to Sanket. Hope you're doing well, buddy. And to everyone else who's joining in. This is now, I think, Insta Live number 22 of Beyond the Field. We are approaching the end. And hopefully we can sign off with a bang. There's some exciting guests lined up towards the end of this month, which is when I look to wrap things up. So let's keep a lookout for that. But some great questions that have already come in for Irfan, and I'm looking forward to this chat because he's a very rare commodity in our sport, right? He's outspoken on a lot of issues that it's important to be spoken on. So that's something we will discuss. और इसके साथ साथ थोड़ी हिंदी में भी बात करेंगे because I think Irfan he's got such fluency in his Urdu and his Hindi is so good that it's only just that we have enough conversation there. Sanket, which is my favorite book in the background. So the thing is, I don't have. No, I do have it. Okay, I thought I had given the Rahul Bhattacharya book. It's called Pandits from Pakistan. It's incidentally from that 2003-4 tour that India took to Pakistan. It's one of the best tour books that you will read about cricket. So feel free. It's the Rahul Bhattacharya's Pandits from Pakistan, the green one right over there. That's the one that I would strongly recommend. So if you haven't read it already, please do. And yeah, other than that, there are a lot of good cricket books that you could actually catch up with in these times. And perhaps one of the underrated ones is Sanjay Manjrekar's Imperfect, even though you guys might know that I'm a good friend of his. But his book is genuinely enjoyable to read. It's very honest. It's literally like Sanjay having a conversation, sitting with you. So it's a real fun book. And there's a lot of humor in that as well. So that's a good book. Osman Samiuddin has written a book called The Unquiet Ones. That's something I would urge you to read as well. So yes, those are some recommendations. I've done that in a sort of Q&A on some of the best books that I've read. Gaurav Kalra is here. He's read many more books than I have. It's a good man to ask if you want a more informed view of what books to read. So hello to Gaurav. Hope you're well, Mr. Kalra. Hope everyone at home is doing well as well. And so we've got Irfan lined up today. I've already got some pretty good questions. There are lots of Greg Chappell questions which tend to come up with perhaps players like Irfan and those that played in that era of the I don't like calling it the Chappell era, but yeah, at the time that Greg Chappell was coach. And he's been in the news recently. We have covered a story, of course, on how he looks back at his career and thinks about the role shift that he had in the team when he went from an attacking swing bowler with the new ball to a number 3 batsman, right? And an all-rounder, a batsman and therefore a bowler who had to come on first change. So that is an interesting discussion that he's triggered. So we'll have a bit of a chat on that too. Mr. Kalra saying starved of entertainment, clearly, hence here. Well, this is the best entertainment you can get on a Sunday evening, Mr. Kalra. Please stop these pointless sledges. When you and I both know there aren't better things here to ask. Kalra ji is here asking more about one of the great inventions of mankind from Ravdeep. So Ravdeep is obviously very well acquainted with our content and knows that I tend to pull Mr. Kalra's leg on his significantly advanced age. But anyway, Ghaffar is here. Ghaffar, who's a very fine anchor in Pakistan, a cricket journalist, and Ghaffar says Pathan always reminds me of the hat-trick. Yeah, it'll remind you, Ghaffar bhai, because at the end of the day, even though Irfan was sensational in that spell and got that hat-trick, Pakistan won that test quite comfortably and they've within the series, if I remember correctly. So, yeah, I know what Ghaffar is trying to do, saying mujhe yaad aa raha hai Irfan ka wo hat-trick. But yes, it was one of the iconic moments of Irfan's career and of Indian cricket. A hat-trick at that time was a magnificent sort of feat. It still is a test hat-trick, that too Irfan doing it with the new ball and I mean, it was a special moment. It's etched in every cricket fan's memory that sort of grew up in that era, like me, and not like Gaurav Kalra. But anyway, he remembers that very well too. What else you guys up to these days? Please do give me some thoughts, feedback on how you've enjoyed this. It's coming to the end, but I do plan on
perhaps doing this at some point in the distant future. To be honest, I've had enough of Instagram, but well. Krutika says, I locked my dad in the bathroom for the hat-trick ball because he probably was in, and then that's how the first wicket came or the second wicket came. One of those old Indian cricket rituals, right? If something good has happened, then whoever, wherever they are, just stay where they are. Well, I feel for your father, Kritika. I hope he remembers that as fondly as all of us. Ashish Oltikar says, did Irfan enjoys cricket under Dravid's captaincy? That's a good question. I think you should bring these. Just make sure you post these again once Irfan's here, in case I forget at the time. You know how it is when these Insta lives come up. Mrinal, the best movie or web series you've watched of late? I just started The Last Dance, so I'm sure in a little while from now, I will be recommending that. But I really like Patal Lok, which was, I'm a big fan of Indian web series getting it right. So please do watch that if you haven't already. Mr. Kalra is saying Irfan is late. Do you want to check the makeup room? Well, it's a fun story actually, and I should bring it up with Irfan perhaps when he's here. And I can use your name, Mr. Kalra, that'll help as well. That the first time Irfan actually worked with us, there was a communication issue with the timing, I believe, and he was given a time to come, which was actually the time to record, so it was all a bit delayed. But like I posted in one of my posts on Irfan, that he came with his entourage, including his personal barber and his stylist and whatnot. He was like a Bollywood celebrity, man. And we then had to wait till Irfan had his, fantastic look. He always looks great, right? Irfan Pathan, he's you wouldn't find like one hair off, not like me. So he's that good, isn't he, Irfan? But yeah, I am going to just make sure that he gets my text. I'll just send him a waiting for you. Hopefully this will be enough. People usually criticize Greg, says John's Benny, but many of them don't know that Irfan called Greg for inaugurating his cricket academy. That's a good question, Johns, and you're a very, very keen follower of cricket in general. I've seen that, so you don't miss too much. That's a nice question. We should put that to him. No question is off limits on these Insta lives, as long as it's not a stupid question. And I do see some dumb stuff. I saw some real crap when I was doing the Insta live with Isha. I then discovered when I was doing the one with Brad Hogg that you can actually kick someone out from at least the Insta live, or at least hide them. So I don't know if you can kick them out, but you can hide them. I'm hoping that hiding setting is for everyone and not just me. So in case any of that rubbish does come up, because these days, we like to throw in some rubbish every time we watch anything. Just keep it in mind. Nadine is here, my good friend Nadine, who says, Happy Father's Day to Zuri's dad. That's very cute. Yes, I did. I have recently got a beautiful female golden retriever pup, and we call her Zuri. So that's very, very thoughtful, Nadine. Thank you very much. And should I return the wish to you and Kanav, or no? Maybe I'll wait. I'm doing very well, Ashish. Thank you very much. Ashish Oltikar, I remember you watching a lot of our quizzes during the IPL a couple of years back. So hope you're doing well. Irfan's here. Let's get him on. Right. So this should be fun. Yes, my friend. Hi, buddy. How are you? Very well, Irfan. क्या हाल चाल आप सुनाइए? एक मिनट यार सेट कर दो. हाँ बस एकदम बढ़िया यार. क्या चल रहा है? लाइफ ठीक है? बस बढ़िया. मैं वही सोच रहा था कि अभी जो हमारे गौरव कालरा थे, आपको याद होगा, हमारे साथ काम करते थे क्रिकेट पे, तो कह रहे थे कि इरफान इज लेट, यू माइट वांट टू चेक द मेकअप रूम. So I remember so that's a nice sledge start to the show. लेकिन मैं तो अभी सोचा कि अभी तो मेकअप रूम कहाँ, अभी तो भाई को खुद अपनी ही तैयारी करनी होगी. अभी तो वो बड़ी ऑन्ट्राज का है जो बॉलीवुड फिल्मों की तरह आपके पास हमेशा आके इर्द गिर्द घूमती रहती थी. बट यू आर लुकिंग $1 million as always. क्या हाल चाल? So good to see you. Good to see you, Ronak. So are you? You're looking fresh, man. अरे फ्रेश. अभी आप खुद अपने आप को देखो और मुझको देखो, मतलब ये मेरे बाल कैसे भी जाते. मैंने अब भी वही कहा कि इरफान इज सो पर्टिकुलर अबाउट हिज लुक्स that you will not find, भले लॉकडाउन क्यों ना हो, or maybe he's not had access to the top stylist जो भी, but you will find him to be perfectly. Look at that branded cap, perfectly bearded. जब मुझे देखो अभी, मैं तो 2 दिन से मतलब पहली बार नहाया हूँ. जब भी इंस्टा लाइव होता है तभी नहाता हूँ. मैंने तो यार ये पहले ऐसा नहीं था रोनक. जब से मेरी शादी हुई ना,
सो मेरी बीवी बहुत पर्टिकुलर है। अगर मैं कुछ भी, अगर मेरी शादी से पहले की फोटो देखोगे सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी, उसमें फर्क है और शादी के बाद बहुत फर्क है। तो ये बीवी का असर है, मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा ऐसा है क्या, मतलब इतना। तो अभी मुझे पता चल रहा है कि कैप्टन कौन है घर पे, मुझे लगा कि शायद चलो एट दो द एंड ऑफ द कैप्टन डे यू आर दो कैप्टन है, दो बताइए। कैप्टन है, एक मेरी माँ और सुनाइए। एक मेरी बीवी। दो अरे बाप रे, कैप्टन है। तो अगर दोनों में फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिसको कहते हैं हो गया, तो फिर किसकी चलती है? यार ये सबसे अच्छी बात, ये जो सवाल पूछा ना एकदम बहुत बढ़िया है। यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहते हैं, लेकिन फिर भी टीम वर्क की तरह बराबर काम करते हैं। क्या आंसर दिया आपने, क्या आंसर दिया आपने। अभी ये नेक्स्ट जो आप करोगे ना, आप इस पे एक किताब लिख लेना, ताकि मुझ जैसे जो अभी अभी शुरू कर रहे हैं ये जर्नी, तो शायद हमें हाँ, थोड़ा मतलब एक दो चीज सीखने को मिलेगी। बट सो गुड टू सी राइट। यू। बताइए लॉकडाउन कैसे चल रहा है आपका? मतलब आई स्टिल वॉच यू क्वाइट ऑफन ऑन स्टार स्पोर्ट्स क्रिकेट कनेक्ट वगैरह वगैरह, लेकिन उसके अलावा टेल मी, आई होप एवरीबडी एट होम इज कीपिंग वेल, सब बढ़िया? यार सब अच्छा चल रहा है, ऊपर वाले का शुक्र है। लुक, मैं हमेशा बात करता हूँ कि जो प्रिविलेज है और जो लेस प्रिविलेज है उनमें फर्क है इसमें। क्योंकि जो लेस प्रिविलेज है यार, मैं हमेशा उनके बारे में सोचता हूँ कि उनके लिए बड़ा मुश्किल है। हमारे यहाँ पे, हमारे मुल्क में अगर देखा जाए तो यार बहुत ज्यादा जो क्लोज नीड सोसाइटी है, जहाँ पे छोटे छोटे मकान है, जहाँ पे छोटे छोटे रास्ते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम जैसों के लिए, आप जैसों के लिए, जो हम लोग जो भी 2-3 बेडरूम फ्लैट में रहते हैं या जिसका अपना इंडिपेंडेंट हाउस है, उनके लिए बिल्कुल लॉकडाउन एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। बिकॉज रोजमर्रा की जिंदगी के लिए तो कमाना नहीं है, जो भी कमा के रखा है उसलिए तुम्हें खाना पीना है। उनकी जिंदगी बड़ी जबरदस्त चल रही है और मेरे लिए पर्सनली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रही है। बिकॉज मैं 15 साल की उम्र से, मुझे याद है जब मैं पहली बार अंडर-15 इंडिया को खेला, तब से लेके अभी तक नॉन स्टॉप ट्रैवल कर रहा था। मुझे लगा मैं अगर क्रिकेट छोड़ दूंगा तो उसके बाद शायद मेरा ट्रैवल कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ट्रैवल बढ़ गया। मतलब मेरा जम्मू कश्मीर का प्रोजेक्ट आ गया मेरे पास, मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, मेरी अकेडमीज है, तो मतलब वो बार बार ट्रैवल रेगुलर चलता ही रहता है। और फिर बाद में एक मूवी कर रहा हूँ, सो और भी ज्यादा बिजी हो गया। लेकिन अब इसके चक्कर में, लॉकडाउन के चक्कर में, ये जो पेंडेमिक पूरी दुनिया में आई, उसके चक्कर में हुआ है कि मैं अब घर में टाइम ज्यादा स्पेंड करने लगा। 3 महीना में घर पे था, वालिदैन के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। आई थिंक मेरे लिए तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ये आपने बहुत अच्छी तरह ये कहा है, एंड आई थिंक काफी लोग हम रिलेट कर रहे हैं कि एक तरह से जो जो भी इनकन्वीनियंसेस जो हम कह सकते हैं, जो हम जैसे प्रिविलेज लोग हैं, हमने तो उसको टर्न अराउंड कर दिया कि चलो इट्स टाइम टू स्पेंड विद द फैमिली, एंड मे बी कुछ एक दो नए स्किल हम शार्पन कर राइट, रहे हैं और उसके बारे में इंस्टा वगैरह पे डाल रहे हैं। बट वो राइट, पर्सपेक्टिव हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि वी कम फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड प्लेस, और जो राइट, कितने सारे लोग हैं उनके लिए दिस लॉकडाउन हैज बीन सो डिफिकल्ट। और इसी के साथ साथ मैं द टाइमिंग इज कोइंसिडेंटल, मैं सबको बता दूं, क्योंकि लास्ट जो मैंने पिछला एक इंस्टा लाइव किया था विद ब्रैड हॉक 2 days बैक, तो उसमें काफी लोगों ने कहा कि थैंक यू फॉर शेयरिंग द इरफान स्टोरी, जो मैंने ट्वीट डाली थी अ फ्यू डेज बैक। एंड आई मस्ट टेल यू, एंड ही इज हियर राइट नाउ, शायद थोड़े से शर्मिंदा हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने मुझसे खास कहा था कि मैं किसी को ये कहने नहीं वाला था, लेकिन अभी वो जो ऑलरेडी बाहर आ गई है प्रेस में, तो मैं चलो आई विल रिंग इट अप, कि बिल्कुल इसी तरह इरफान ने मुझे मैसेज किया जब मैंने उसको कहा कि आई एम सो हैप्पी कि आपने उस कॉबलर को, जो जिसके बारे में हमने काफी अभी पढ़ा सुना है, चेन्नई बेस्ड कॉबलर, जो बिना आईपीएल में ही वाज रियली स्ट्रगलिंग टू मेक बेसिक अमाउंट ऑफ मनी जो हर आईपीएल में वो बनाता था, एंड ही हैज अ बिग फैमिली, और वो नहीं, ही वाज स्ट्रगलिंग टू इवन पुट 2 meals ऑन हिज टेबल, ऑन हिज फैमिलीज टेबल। तो इरफान, एंड आई बिलीव के यू हैव सम इंटरेक्शन विद हिम इन द पास्ट, उसके बारे में मैं जरा पूछूंगा आपसे। तो Irfan got his number from me, and without anything else, just managed to get through to him and transferred the amount that he would make in the IPL. और जब मैंने इरफान से कहा really well done buddy, I mean that was amazing, एक सिंपल चीज आपने कही कि भाई जरूरतमंद को तो ही तो मदद करनी चाहिए, and I thought that was just amazing. नहीं यार, थैंक यू फॉर ऑल द काइंड वर्ड्स। बट मैं ये मानता हूँ रौनक कि ये जो भी चीज जो भी बाहर आती है, जो भी है, ये एक तिनका भी नहीं है। मुझसे कई ज्यादा बड़े बड़े लोग बैठे हुए जो बिल्कुल इतनी मदद करते हैं और उसके बारे में बात भी नहीं करते। देखिए, 2 चीजें रहती है, एक चैरिटी रहती है जिसके बारे में बात नहीं करना चाहिए, जिसके बारे में आपको, हाँ, सोशल वर्क और चैरिटी ये दोनों अलग चीजें। सोशल वर्क शायद आप इसलिए करते हो, आप इसलिए दिखाते हो क्योंकि आप चाहते हो कि आप एग्जाम्पल बनो और बाकी लोग भी आपके साथ जुड़े, और फिर वो एक चेन बनती जाए और आप आप उसको बड़ा बनाते जाए, और जो जरूरतमंद है वो जरूरतमंद को वो चीज पहुंचाई जाए। चैरिटी ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको बात कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बात करते फिर वो चैरिटी नहीं रहती है, और फिर उसका जरिया जो आपको क्या बोलते हैं यार, उसका जो इनाम आपको मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए रब की तरफ से। लेकिन अगर आप बात कर दो कि लोग इसका इनाम देंगे तारीफ करके, वो सेम नहीं है। बिल्कुल जो रब आपको उसका इनाम देगा वो कोई नहीं कर सकता। तो मैं ये मानता हूं कि मैं वो बारे में मैंने ना बात की, ना मैं बात करना चाहूंगा, लेकिन मुझसे कई ज्यादा बड़े बड़े लोग रौनक पड़े हुए हैं। मेरा एक दोस्त है मुंबई में, जिसने 5,000 जकरिया, मैंने अभी कल ही परसों ही पोस्ट किया उसके बारे में,
5,000 फैमिली को उसने घर पे खाना पहुंचवाया। मतलब ये और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में हम लोग बात नहीं करते, उनके बारे में बात करनी चाहिए। और ये तो एक छोटी सी चीज है यार, मतलब और मैं चाहता हूँ कि यार जितना हम देने की बात करें। हाँ, मैंने जब मास्क की स्टोरी, जो मैंने भाई की जो स्टोरी डाली थी, जब हमने मास्क देना स्टार्ट किया था, तब मेरा सोशल वर्क था और तब मैंने वो पोस्ट किया था। उसका रीजन ये था भाई कि मुझे पता था कि ये चीज बहुत लंबी चलने वाली है, ये नहीं रुकने वाली है। और तब नया नया क्या हुआ था, लोगों ने हुडिंग करना स्टार्ट किया था और लोग क्या कर रहे थे, लोगों को अंदेशा हो रहा था कि ये गड़बड़ होने वाली है, पेंडेमिक आने वाली है, लॉकडाउन होने वाला है, कर्फ्यू लगेगा। तो लोगों ने क्या किया, अपने घर में हुडिंग करना स्टार्ट किया, सामान अपने घर में रखने लगे। तो मुझे लगा वो टाइम पे एक सोशल वर्क ये करना चाहिए कि आप छोटी सी चीज दो, छोटी सी चीज दिखाओ देने वाली, भले उसके पीछे बहुत सारी आप चीजें करते रहो, लेकिन आप इसलिए दिखाओ क्योंकि लोग ये बात को समझे कि होर्डिंग नहीं करना है और ये जो देना है, देने वाली चीज को फैशन बनाना है। तो इस वजह से वो मास वाली स्टोरी डाली थी। बाकी जितना हो सकता है, बाकी चीजें जितनी दबी रहे उतना ज्यादा बेहतर है। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मुझे एक्चुअली कुछ लोगों ने रिप्लाई भी किया जब मैंने वो ट्वीट डाला आपके इस इंसिडेंट के बारे में कि अगर इरफान को इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी तो आपको शायद उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए था और नहीं डालना चाहिए था। तो मुझे एक इंटरेस्टिंग सा एक थॉट आया कि सोशल मीडिया इज सच अ पावरफुल प्लेटफॉर्म। ये आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। अफसोस की बात यह है कि आजकल सोशल मीडिया जितनी जो पावर उसकी हो सकती है, जो पॉजिटिवली उसको यूज किया जा सकता है, वो यूज नहीं किया जा सकता है। वो पूरी तरह से वो ऑप्टिमली हम यूज नहीं करते। लेकिन जहां नेगेटिविटी की बात होती है, हम तो मतलब पूरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले आते हैं कि मतलब कोई हम कसर छोड़ते नहीं है। तो किसी को अगर नीचा दिखाना हो, किसी की अगर ट्रोलिंग करनी हो, किसी को अगर गाली देनी हो, तो उसमें तो भाई सब लाइन में लग जाते हैं। लेकिन अच्छाई में मतलब कोई किसी को ज्यादा वो रिट्वीट करना नहीं होता या किसी को ज्यादा वो इंटरेस्ट नहीं होती है। हमारे न्यूज चैनल को भी वो सब मतलब वो सेल करना ही नहीं होता है। तो इसमें मैंने एक बिल्कुल, तो ये जो अच्छाई जो है इतनी आसानी से बिकती नहीं है ना आजकल। तो इसलिए मैंने दो रीजन चलेगा। एक तो लोगों को पता होना चाहिए कि इस जो कोई अच्छा काम होता है, मे बी अपने आप में पीपल गेट एन आइडिया कि या इवन आई कैन डू समथिंग। और इसी तरह आई एम श्योर समवेयर और द अदर भास्करन की भी जो फ्लाइट है, maybe it just went out and maybe more people also approached him. That was one thing. दूसरी बात तो ये है कि, और ये मेरा एक पेट पीव है ना, ये मैं इस पे मतलब अटक के रहता हूँ और यही प्लेटफॉर्म में कह सकता हूँ, मैं ESPN या स्टार पे ये कह नहीं सकता कि भाई हमारे इंडस्ट्री में जहाँ क्रिकेट ब्रॉडकास्ट की बात होती है, वी आर पीपल इन द पब्लिक आई, यू सर्टेनली मोर देन मी, एंड हम पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और मैंने इसी बारे में मैं महिला जयवर्धन से बात की, हु इज वेरी आउटस्पोकन ऑन इश्यूज बियॉन्ड क्रिकेट। और ये कोई मतलब कंट्रोवर्सी पैदा करने वाली आउटस्पोकन वाली नहीं है। दिस इज व्हेन यू फील के कुछ समथिंग दैट हैज टू बी सेड फॉर द राइट रीजंस, आपको बोलनी चाहिए। बिकॉज महिला सेड समथिंग वेरी नाइस, यू आर इन अ पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस और हाउ यू यूज दैट इन्फ्लुएंस इज ऑन यू। तो इसीलिए मैंने ये देखा है, और आप सब जो सोशल मीडिया फॉलो करते हो आप जानते भी होंगे कि इरफान इज वन ऑफ द फ्यू पीपल इन आवर क्रिकेट इंडस्ट्री who will say what he feels when the appropriate time is required. और उस टाइम पे सवाल उठाए जाते हैं, और जो हमारी टॉक्सिसिटी बनती है, टॉक्सिक नेचर जो बन गया ट्विटर का, कि भाई किसी के आगे उनका मजहब देखो, नाम देखो, उसके बारे में मोटिव सोचो और फिर ये मतलब बकवास कर लो। तो उसके साथ साथ ये भी एक हमें डालनी चाहिए कि भाई दिस इज एक्चुअली पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म ये नहीं है कि भाई कोई आसान सा ट्वीट कहीं कर दो, मतलब सॉफ्ट टारगेट कोई ढूंढ लो और दिखा दो कि भाई हम कितने पेट्रियोटिक है। तो इसलिए मैंने ये भी एक दो तरफा मेरा एक मोटिव था। और मैं इसी के साथ आपसे ये भी बात करना चाहता हूँ, फर्स्टली आई हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू कि आप इन इश्यूज पे भी आप अपने ही स्टाइल से विदाउट सेइंग एनीथिंग अननेसेसरी, जो नेसेसरी चीज है वही आप बोल देते हो, और जो बहुत कम लोग करते हैं। तो ये आप में मतलब एक कभी कभी आता है कि डू यू फील कि यार नहीं ये रहने देते हैं, क्योंकि कितने लोगों को मैंने देखा है प्रिविलेज की दुनिया खुद प्रिविलेज की लाइफ खुद जीते हैं, एंड दैट्स व्हाई यू फील के नहीं यार छोड़ दो ना, व्हाई रफल द फेदर्स, व्हाई से ऑल दीज थिंग्स। लेकिन आप उनमें से नहीं हो। तो ये आप पहले से ही ऐसे थे कि मतलब आई वांट टू नो हाउ दिस केम अबाउट, बिकॉज़ दिस इज अ टफ प्लेस टू बी इन। काफी थिक स्किन्ड होना पड़ता है सबके लिए। बिल्कुल, देख, अगर थिक स्किन नहीं होगी तो आप सोशल मीडिया पे आप अपनी इमेज वो बरकरार नहीं रख सकते, बिकॉज आपको एक बढ़िया तरीके से और आपको रियल होना है। देखिए, सोशल मीडिया में आपकी अगर इमेज बनती है वो तभी बनेगी क्योंकि अगर आप रियल हो। आप अगर फेक बनने की कोशिश करेंगे, आप जो नहीं है वो बनने की कोशिश करेंगे, तो आज नहीं तो कल आप उसके सामने, लोगों के सामने वो खुले पड़ जाएंगे। तो एक तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आप कर रहे हैं वो आप किस सोच में कर रहे हैं, और आपका जो जमीर है वो आपका जवाब लोगों को नहीं देना है, वो ऊपर वाले को देना है। और आपके आसपास के लोग बहुत जानते हैं उसके बारे में। सी, ये जो सोच है, जो बेबाकपन है, ये पहले से रहा है। ये मेरे फादर भी थे यार। मेरे फादर ऑब्वियसली पठान फैमिली से है, मेरे फोर फादर्स भी पठान है, मेरे माँ के फोर फादर्स भी पठान है। अब पठानों का एक कैरेक्टर रहता है, वो डरते नहीं है किसी से। हाँ,
देखिए एक डिसरिस्पेक्ट अलग चीज होती है, लेकिन डरना एक अलग चीज होती है। आप डिसरिस्पेक्ट मत करो, पर आपकी जो बात है वो आपको बोलना ही है। तो ये मेरे फादर की तरफ से आया। मेरे फादर जब मौजिन भी थे, और जब मैं नया नया इंडिया भी खेला था, और जब जो बातें करते थे और आज भी जो बातें करते हैं, वो बेबाकपन से बात करते हैं, और मेरे में भी वही चीज है। हाँ, लेकिन सबको इज्जत से लेके चलना बहुत जरूरी है यार। मुझे ये लगता है कि एज अ सोशल इन्फ्लुएंसर, जो बंदा इंडिया को खेला है, जो बंदा इंडिया को रिप्रेजेंट करा है, इंटरनेशनल लेवल पे जाके झंडे गाड़े हैं, चाहे वो कौन सा भी मुल्क रहने दो, पड़ोस के मुल्क में जाएंगे नहीं, लेकिन कोई भी मुल्क रहने दो, ऑस्ट्रेलिया रहने दो, इंग्लैंड रहने दो, पड़ोस के मुल्क रहने दो, कहीं भी रहने दो, वहां जाके जब झंडे गाड़े, वो बंदा जब कोई बात करता है तो सोच समझ के बात करता है। इंडिया खिला वो बंदा हमेशा बात करेगा यूनिटी की। मैं हमेशा यूनिटी की बात करता हूँ। मैं जिस दिन मुझे लगा कि यार ये मैं झगड़ा करने वाली बात करता हूँ, मुझे सोशल मीडिया का कोई काम नहीं है, क्योंकि मैं उससे नहीं जीता हूँ। मेरी लाइफ उस पर नहीं चलती, मेरी लाइफ रियल पे रहती है। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी जो फैमिली जो लाइफ है, वो फैमिली लाइफ ज्यादा से ज्यादा रहे प्राइवेट, बहुत कम चीजें पब्लिकली आए, लेकिन मेरी सोच एक बाहर जरूर जानी चाहिए जिससे मुल्क को फायदा हो। यार आज अगर मैं देख रहा हूँ कि अगर कोई चीज गलत हो रही है, मैं उसके बारे में अगर बात नहीं करूंगा जिसपे मैं बिलीव करता हूँ, तो फिर कोई फायदा नहीं है। और हमेशा जब भी मैंने कोई ट्वीट किया है कोई सेंसिटिव मुद्दे पे, मैंने एक्चुअल लोगों से बात करके, डबल चेक करके, ये नहीं है कि मैंने मीडिया में देखा, हाँ, जो कभी जो अभी मैं क्या बोलूं यार, अल्फाज मेरी जुबान से, मतलब क्योंकि समझदार को हम इशारा बस काफी हो जाते हैं, हमको पता भी है मीडिया की क्रेडिबिलिटी क्या है आजकल। जी एग्जैक्टली। आज जो हालात जो करके रखी है, एक बंदा गुजर गया है, उसके घर वालों से आप जाके सवाल पूछ रहे हो ऐसे वक्त पे, मतलब ये मीडिया की भी क्रेडिबिलिटी हो गई है। इट इज सो अनफॉर्चुनेट। बट आज अगर ये मीडिया में जो लोगों को लड़ाने वाला जो भी कार्यक्रम चल रहा है, मैं अगर मिलाने वाला काम नहीं करूंगा ना, तो मेरा इंडिया खेलने का कोई मतलब नहीं है। मतलब इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, और दूसरी ये बात भी है कि अगर कोई ऐसी चीज हो रही है जिसपे मैं बिलीव करता हूँ कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, उस पर मैं ट्वीट करता हूँ। तो मैं आपको सीधा एग्जांपल देता हूँ। जब जामिया का मैंने ट्वीट किया था, जब आपको पता होगा गारो के, बिल्कुल, मैंने उसके बारे में काफी सोचा था। सिर्फ सोचा ही नहीं, मैंने खबरें पढ़ी, मैंने उसके बारे में बार बार पढ़ा, यहाँ तक कि मैंने वहां के स्टूडेंट से बात की। और कई लोगों को ये गुमान है कि जामिया में सिर्फ एक ही फेथ के लोग पढ़ाई करते हैं। ये बात नहीं है, ये सच बात नहीं है। तो हर फेथ के लड़के से मैंने बात की, उस पर बाकायदा बार बार सोचा, बार बार मैंने उससे बात की। कई मेरे जानने वाले लड़के भी उसमें पढ़ते हैं, मैंने पूछा, उसके बाद जाके मैंने ट्वीट किया। वो भी फिक्र वाला ट्वीट था, कोई लड़ाने वाला। और फिक्र वाला इसलिए ट्वीट किया कि सबकी नजर वहां पे जाए कि अगर यहाँ पे इनके साथ गलत हो रहा है तो इसके बारे में कुछ किया जाए। और अगर मैं स्टार्ट करूंगा किसी चीज को, तो फिर दुनिया बात करेगी, और बात करने लगी। और उसके बारे में देखिए, आज स्टूडेंट हमारे फ्यूचर है, अगर उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक देयर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न फ्रॉम जो आपने अभी अभी कहा। और सबसे ज्यादा मुझे जो व्हिच टच्ड मी वाज कि आपने कहा कि अगर मैंने वो यूनिटी वाली बात नहीं की तो मेरा इंडिया खेलने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन कभी कभी एक ऐसा एक अकेलापन महसूस होता है कि भाई इंडिया के लिए तो कितने खेल चुके हैं, लेकिन जब बात करने का समय आता है तो मतलब प्रमोशनल ट्वीट बहुत आ जाते हैं, लेकिन इस तरह पे हम लोग सब मतलब आउटसाइड ऑफ स्टंप छोड़ ही देते हैं। तो आप और मैं लाइटली ये बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई अगर आप जैसे हैंड, चलिए एक हाथ में मैं गिन सकता हूँ कितने क्रिकेटर है जो ऐसे मुद्दे पे सेंसिटिवली रिस्पॉन्सिबली बात करें, लेकिन अगर आपके जैसे 10-15 और हो जाते तो मतलब आधी लड़ाई वहीं पे हम जीत जाते। यार मैं ये मानता हूँ कि इंसान की जो बात करने की जो इच्छा होती है सोशल मीडिया पे, सिर्फ प्रमोशनल एक्टिविटी आपको नहीं करनी चाहिए, आपको सोशल वर्क करना चाहिए, आपको लोगों में ऐसी बात करनी चाहिए जिससे आप ग्रो कर सकें। आपको नहीं लगता ये मुल्क ग्रो कर सकता है? कितना ज्यादा पोटेंशियल है अपने मुल्क में। गौरव, रौनक, सॉरी, मेरे हिसाब से इंडिया दुनिया का नंबर 1 कंट्री बन सकता है। मैं ट्रैवल किया, मैं ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल किया, मैं एम्स्टर्डम ट्रैवल किया, ये सब क्रिकेट के जरिए। ये सिर्फ मैंने मुल्क को रिप्रेजेंट किया। मैं दुनिया के हर कोने में घुमा हूं जहां जहां क्रिकेट होता है, जहां मैं इंडिया को खेल चुका हूं। मुझे लगता है यार मेरा मुल्क इससे बेहतर बन सकता है। हमारे पास क्या क्या नहीं है। आप नॉर्थ इंडिया से चले जाओ, आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक चले जाओ, इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी जबरदस्त लैंग्वेज है, इतने ज्यादा टूरिस्ट हमारे यहाँ आ सकते हैं, और हमारा मुल्क दुनिया का नंबर 1 बन सकता है। हमारी यूथ हमारी स्ट्रेंथ है, हमारे पास इतने पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया का सबसे ज्यादा यूथ हमारे पास है। और यार हमारे साइंसदान इतने बड़े बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं, जो दुनिया के बाहर, जो दूसरे मुल्कों में इंडियंस बैठे हुए हैं बड़ी बड़ी पोस्ट पे, वो हमारे यहाँ पे हो सकते हैं और हमारे मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। तो बात ये रहती है कि बात करने वाली बात के दूसरे लोग भी बात कर सकते हैं। अगर करेंगे तो बेहतर है, करेंगे तो अच्छा होगा, यूनिटी की बात होगी, मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं।
और हम लोग के बात करने से जो जो मुद्दे जो दब जाते हैं, जिसके बारे में हम लोग सोचते हैं यार नहीं यार हमारा देश महान है, ये हम बात बोलते हैं, लेकिन अगर सच में ये हम लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग भी ये बात माने तो हमको वो चीज करके दिखानी होगी, हमको वॉक द टॉक करना पड़ेगा यार। ये हम लोग सिर्फ खाली बात करें यार हमारा देश महान है और जो जो मुद्दे जिसमें बेहतरी होना है उसको बेहतरी होने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर नहीं चलेगा भाई हमको। तो आइडियली जो तुम्हारा सवाल है भाई रौनक के, दूसरे लोग बात क्यों नहीं करते या दूसरे लोगों को बात करना चाहिए, आइडियली करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इनसिक्योरिटीज भी है। देखिए आज एक कमेंटेटर दूसरी टीम जो आती है उसके बारे में बात करता है, तारीफ करता है, एक फिल्म स्टार जो बहुत बड़ा फिल्म स्टार है वो उसके बारे में ट्वीट करता है और सडनली उसका जॉब चला जाता है। ये इनसिक्योरिटीज है। तो ऐसी बहुत सारी इनसिक्योरिटी बहुत लोगों को है, इस वजह से लोग बात नहीं करते। तो अगर हम सिक्योरिटी दे देंगे तो लोग बात करेंगे। देखिए और बात करना चाहिए तमीज से। आप अगर तमीज से बात नहीं करेंगे, गाली गलौज करेंगे, दैट्स नॉट राइट। आपको तमीज में रह के, वो दायरे में रह के आपको अपना ओपिनियन शेयर करना है। हो सकता है यार कि बड़े लेवल पे बैठा हुआ आदमी हमारी बात शायद कभी सोशल मीडिया पे देखे और उसको कुछ चीज ऐसी लगे जिससे उसको फायदा हो सके। आज मुझे गुजरात गवर्नमेंट ने इनवाइट किया था जहाँ पे हमारे सीएम के साथ रूपानी जी के साथ कॉन्कॉल था, जहाँ पे अभी ये पेंडेमिक के बारे में बात करनी थी, आगे फ्यूचर कैसे होगा उसके बारे में बात करनी थी। तो सारे अलग अलग शहरों के सारे कलेक्टर के ऑफिस में पॉलिटिशियंस बैठे हुए थे, बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, स्पोर्ट्स लोग बैठे हुए थे। तो वहां पे मैंने हल्की सी बात करी रूपानी जी से, और यहाँ तक कि मैंने एज ए क्रिकेटर जो मुझे इन्वाइट किया था एज ए स्पोर्ट्समैन, सारे मुद्दे लिख के, सारे लोगों से मुद्दे लिख के कलेक्टर को पहुंचाया, रूपानी जी के बेटे को पहुंचाया और कहा कि अगर आपको ठीक लगे तो इस पे जरूर आप एक नजर मारना, क्योंकि ये सिर्फ मेरे पॉइंट्स नहीं है, ये सारे पॉइंट्स है जहां पे मैंने बाकायदा खुद जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है गुजरात में, जहां पे मेरे दोस्त लोग जानते हैं, उनसे बात की है, जो एक्चुअली इश्यूज है डॉक्टर्स के, उनसे बात की कि उनके सामने क्या क्या चीजें आती है और जो लोग हैं उनके सामने क्या क्या चीजें आती है, वो सारे पॉइंटर्स है। आपको लगता है ठीक है करिए, हो सकता है आप उसको उससे फायदा हो सकता है। तो ऐसा ही सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये आप और हमारी और जितने भी लोग हैं सबकी जिम्मेदारी और अपना ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन दायरे में रह के। अब मैं हमारे कलेक्टर साहिबा को मैं ये बोलूं कि नहीं, मेरा ही ओपिनियन आप ध्यान दीजिए, ये गलत है। ये मेरे ओपिनियन है, आपको ठीक लगे, आपको लगता है कि गुजरात को फायदा हो सकता है, मुल्क को फायदा हो सकता है, आप जरूर इसका इस्तेमाल करिए। नहीं, और इस्तेमाल करना नहीं करना ये अब उनकी जिम्मेदारी है। ये आपने मतलब जितनी बात आपने अब की, शायद मैं इसको बार बार दोहराऊंगा। जब कभी किसी ने मुझसे ये पूछा कि यार व्हाट अबाउट क्रिकेटर्स स्पीकिंग आउट, ये वगैरह वगैरह, दिस कवर्स इट इंटायरली। आई थिंक मेरा अगला एक प्रेडिक्शन मैं आपके साथ अभी कर लेता हूँ कि एक ऐसा समय आएगा और जल्दी आएगा कि शायद जितने भी हम इन क्रिकेटर्स को आजू बाजू देख रहे हैं जो इन्फ्लुएंसर की पोजीशन में है, अपने आप ही वो पोजीशन में आ जाएंगे। एंड दैट्स माय होप कि circumstances will push them to a point where it will become, और उस टाइम पे शायद आपको मैं देखूंगा और कहूंगा yes that here is somebody who started that trend, so hats off to you। बिल्कुल you what और एक्चुअली मैंने जब ये सीरीज शुरू की थी इंस्टा पे ये लॉकडाउन के जरिए, इट वाज मेनली टू पुट अ स्माइल ऑन पीपल्स फेस। ज्यादा सीरियस की ये लॉकडाउन ने हमें सिखाया कि ज्यादा कुछ भी सीरियसली लेना नहीं चाहिए, इंक्लूडिंग क्रिकेट। और इसलिए मैं जो भी यहाँ पे आया है, वी ओनली हैड अ नाइस लाफ वगैरह वगैरह, लेकिन आई कुडंट हेल्प माई सेल्फ के शायद इतने टाइम से वो भड़ास अंदर थी कि यार ये तो बात करनी है किसी से, और ऐसे बंदे से जो who is the best to speak on it। So sorry if I got carried away with the non-cricket conversation, but I think that is important to have। और ज्यादा प्लेटफॉर्म्स मिलते नहीं जहाँ ये बातचीत हो सकती है। So I think, और वो भी एक like I said in a civil way, in a responsible way। ऐसा नहीं कि हम न्यूज चैनल पे एक दूसरे को गाली गलौज दे रहे। तो I think this was good fun and this was brilliant। लेकिन yes, फिलहाल अभी मैं कॉन्वर्जेशन को क्रिकेट की तरफ जरा अल्टरनेट देयर, क्योंकि दैट इज द मेन कॉन्वर्जेशन दैट वी हैव। और जब कभी क्रिकेट की बात होती है तो मैंने ये देखा इरफान के, एंड आई नो यू कांट कंसीडर योरसेल्फ अ बॉलर फर्स्ट देन अ बैट्समैन, कि जब भी कोई क्रिकेट में रूल चेंज आता है ना, कि सबकी नजरें बॉलर पे ही रहती है कि भाई तुम लोग मैनेज कर लो। ऐसा कभी रूल चेंज आता नहीं है कि कहे कि बैट्समैन को वी हैव टू चेंज दिस एंड दिस विल चेंज द वे द बैट्समैन प्ले कंप्लीटली। अब जो कि थोड़ा करते 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 बाउंड्री फिर अंदर ले आते हैं, क्या फायदा। लेकिन अब ये जो बातचीत चल रही है अबाउट द यूज ऑफ स्वेट ओनली एंड नो सलाइवा, तो काफी सारी बात और कमेंट्स भी काफी उस पे आए थे उसके पहले। तो उससे आपसे नो वन बेटर देन यू अबाउट द स्विंगिंग बॉल, द न्यू बॉल, तो ये सलाइवा की जो वैल्यू होती है, इज दैट पॉसिबल कि क्रिकेट उसके बगैर भी यू कैन प्ले एज वेल, और ये बहुत बड़ी डिसीजन है जो हमें आगे जाके देखने को मिलेगी कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। देखिए वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट में रौनक उसका फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा।
ये जो भी मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुका हूँ। देखिए, स्वेट और सलाइवा, इसमें जो मटेरियल है वो थिक और थिन है। जो स्वेट होता है वो थोड़ा सा पतला होता है, और जो सलाइवा होता है वो थोड़ा सा हैवी होता है और थिक मटेरियल होता है। इस वजह से जो आप लेदर कर सकते हैं बॉल को, जितना लेदर पे आप डालेंगे उतना ज्यादा आप चमका सकते हैं सलाइवा की वजह से, उतनी शाइन थोड़ी सी कम हो जाएगी। टेस्ट क्रिकेट पे इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि यार ये चीज पूरी हमेशा थोड़ी चलने वाली है। ये चीजों को बदला भी जाएगा, हर बार रूल में ट्वीक होते रहते हैं। देखिए, पहले क्रिकेट होता था 60 ओवर का, वनडे क्रिकेट की मैं बात करूं, वो रेड बॉल में होता था, फिर कलर कपड़े आए, लोगों को लगा ये क्या मजाक चल रहा है, लेकिन फिर 50 ओवर का गेम हो गया, वो जबरदस्त हुआ। फिर T20 क्रिकेट आया, कई जगह पे लोग T10 क्रिकेट खेलते हैं। टेस्ट क्रिकेट ने अपनी जगह अलग से बना के रखी हुई है, लेकिन रूल हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होते रहते हैं, तो ये भी परमानेंट कोई रूल रहने वाला नहीं है। लेकिन जब तक रहेगा तब तक सिर्फ मुझे लगता है आईसीसी की जिम्मेदारी ये रहेगी कि आपको पिचेस जो है उसमें थोड़ी सी मदद रखनी चाहिए एक्स्ट्रा गेंदबाजों के लिए। अगर आप उतना कर देंगे तो बाकी सब चीजें इतनी ज्यादा मायने नहीं रखेगी। I think that should be the general rule as well. भले आप सलाइवा अलाउ करो, स्वेट अलाउ करो, जो भी अलाउ करो, पिचेस तो कंपेटिटिव रखनी ही चाहिए। या बिल्कुल, लेकिन T20 क्रिकेट में गड़बड़ क्या होती है यार, कभी T20 क्रिकेट में बहुत ज्यादा ऐसी पिच मिल जाती है तो वाकई में हमको और आपको भी देखने में मजा नहीं आता। तो वो ठीक है, वो समझ में आता है कि यार ये ऐसी पिचेस है जहां पे आप 170 180 रन आप चेस कर सकते हो, उतनी टाइप की पिचेस होनी चाहिए। और उतनी अगर टाइप की पिच हुई है तो फिर भी बेहतर है। फिर ऐसा नहीं कि आपने 200 बनाया और 200 चीज हो गए बार बार, तो वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन 170 के आसपास की जो पिचेस है वो ठीक ठाक रहती है, तो आपको देखना चाहिए कि वो थोड़ा सर्वे करना चाहिए कि ये पिचेस पे बार बार 170 के आसपास की चीजें होती है, हर चीज में सर्वे होता है, तो इस पे भी होना चाहिए कौन सी मिट्टी होती है, कैसे कलर की मिट्टी होती है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, कितना बाउंस, कितना रोल, कितना पानी, कितना मॉइस्चर, वो सारी चीजें उसमें जाती है। जितना आप सर्वे करेंगे, आपको एक वो सर्वे के बाद आपको एक रूल बना देना है कि भाई ये इस हिसाब से ही ज्यादातर पिच बननी चाहिए। इक्का दुक्का कभी आपको स्लो पिच आ गई या घास आपने रख दी, वो अलग बात है। तो ये तो जो जितने हम डिटेल में जा रहे हैं क्रिकेट के बारे में, तो मैं ऐसा तो नहीं करना चाहूंगा कि जो काम आप क्रिकेटइन्फो से निकाल सकते हो वो आप मुझसे ले लो। तो फिलहाल मैं क्रिकेटइन्फो के लिए ये बात बाकी की छोड़ दूंगी कि जब इरफान के साथ डिटेल में बात करेंगे रेड सॉइल की या फिर पिचेस वगैरह की, तो उस टाइम पे क्रिकेटइन्फो पे आप पढ़ सकते हो उसके बारे में। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आए, मैंने आपके बारे में एक आर्टिकल कल ही पढ़ा था, जो इस टाइम पे हम अपने पुराने मैचेस ही तो ज्यादा देख रहे हैं और कुछ काम तो है नहीं, और वी आर ऑल मिसिंग स्पोर्ट्स सो मच, स्पेशली लाइव क्रिकेट। और पुराने मैचेस में आपके कुछ आइकॉनिक मोमेंट्स तो है ही, विल टॉक अबाउट दैट इन अ बिट। लेकिन उसके पहले जो मैंने आर्टिकल पढ़ा था, यू सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि जो आपका रोल चेंज था इन ओडीआई क्रिकेट, दैट इम्पैक्टेड द वे यू सॉर्ट ऑफ योर करियर वेंट वेरी सिग्निफिकेंटली। आप स्विंग बॉल बॉलर थे, न्यू बॉल बॉलर थे, अटैकिंग बॉलर थे, और अचानक आपको फर्स्ट चेंज पे लाया गया व्हेन यू वर गिवन द रोल ऑफ एन ऑलराउंडर। सो आई वांट टू गेट मोर इनटू डिटेल विद दैट, बिकॉज काफी सारे सवाल भी आए अबाउट ग्रेग चैपल, और मैं ये मानता हूं कि ग्रेग चैपल इज लाइक समटाइम्स, आई मस्ट से, आई थिंक ही इज द इजी पंचिंग बैग। माना कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो यू कैन क्रिटिसाइज, यस दैट वाज व्हाट वेंट रॉन्ग विद दैट टीम, लेकिन कुछ अच्छा भी हुआ था उस टाइम पे। एंड आई थॉट वन ऑफ द थिंग्स वी गॉट टू सी वाज दैट यू वर इन दैट पोजीशन टू कम इनटू एन ऑलराउंडर। तो मुझे आपसे डिटेल में सुनना था कि व्हाट डू यू मेक ऑफ चैपल्स इन्फ्लुएंस ऑन योर ओन करियर, और ये जो कमेंट्स आपने कही वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। हाउ डू यू थिंक इट इम्पैक्ट, थोड़ा अगर आप मुझे खुल के बताएंगे, आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड टू हियर। यार देखो, मैंने इसके बारे में एक बार बात करी जब मेरा रिटायरमेंट हुआ, तो मैंने ये बोला था कि यार ये जो ग्रेग चैपल के बारे में लोग बात करते कि इसने मेरा करियर खराब किया, नंबर 3 पे ऑलराउंडर भेजा, ये वो सचिन पाजी का एडवाइस था। सचिन पाजी ने राहुल भाई को बोला कि यार इरफान को नंबर 3 पे ट्राई करते हैं, क्योंकि इसमें वो ताकत है, वो छक्के भी मार सकता है और नया बॉल खेल भी सकता है, फास्ट बॉलर को भी अच्छा खेल सकता है। और तब श्रीलंका सीरीज में पहली बार ट्राई किया था जब मुरलीधरन अपने पीक पे था। तो ऐसा था कि यार मतलब उसको भी जाके अटैक करना है, चाहे मुरलीधरन हो, फर्नांडो। और फर्नांडो ने तब नया नया स्प्लिट फिंगर स्लोअर स्टार्ट किया, तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। तो अगर आप प्रेशर में उनको मारोगे तो ये हो सकता है हमारे फेवर में आ जाए, और पहला मैच है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये उनका एडवाइस था। तो अब जब बात आती है कि यार उन्होंने मेरा करियर खराब किया ग्रेग चैपल ने, नहीं, ये बात सही नहीं है। मेरे को लगता है कि ये जो भी डाइवर्ट करने वाली चीजें होती है ना, अब जाहिर सी बात है यार, वो अपने मुल्क का है नहीं, वो बाहर के मुल्क का है, वो जवाब तो देगा नहीं। तो जाहिर सी बात है, चलो यार इसको ही पंचिंग बैग बना देते, यार इसके बारे में डालते रहते। जो असली लोग हैं जिन्होंने वाकई में नुकसान किया है यार, उसके बारे में मैं पर्सनली सिर्फ मैं इतना ही बोलता हूँ कि हाँ, जितना मेरे को सपोर्ट करना चाहिए था उतना नहीं किया। उसका एक छोटा सा एग्जांपल ये भी दूंगा, श्रीलंका सीरीज में जो मैंने मैच जिताया था श्रीलंका के सामने 2008 में, जो मैंने और भाई मिलकर मैच जिताया था, जहां पे 28 बॉल में 60 रन की कुछ जरूरत थी, 7 विकेट गिर गए थे। वो मैच जिताने के बाद बॉलिंग में भी विकेट लिया, उससे पहले 2 वनडे मैच में 4 विकेट निकाला था, और तीनों 3 मैच जो खेला, 2 वनडे 1 T20, तीनों 3 में सनत जयसूर्य जो हमेशा प्राइज विकेट रहती थी, उसकी विकेट निकाली।
उसके बाद न्यूजीलैंड जाके मुझे एक वनडे नहीं खेला गया और उसके बाद मुझे टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। और ये एक बार नहीं हुआ, ये इसके बाद कई बार भी हुआ। जैसे मैन ऑफ द मैच में मिला 2012 में, तो उसके बाद चोट लगी मुझे। चोट लगने के बाद वो रास्ता बनाया जाता है कि यार तुम्हें चोट लगी है, तुमको ठीक करना है, तुमको इंडिया में सिलेक्ट करके तुमको एक रास्ता बताया जाता है। वो रास्ते नहीं खोले गए। तो आई थिंक वो क्यों नहीं खोलेगा ये बताना होगा और थोड़ी क्लियरिटी होनी चाहिए। देखिए मैं चाहता हूँ कि इंडियन क्रिकेट में अभी भी बहुत सारी चीजें कम्युनिकेशन के लेवल पे बेटर हो सकती हैं। बिल्कुल। 2012 में जब मैं इंजर्ड हुआ, घुटना जो मेरा चोट लगा, मैं 9 दिन नॉन स्टॉप क्रिकेट खेला था, जिसमें 3 डे मैच इंग्लैंड के सामने, 4 डे मैच रणजी ट्रॉफी जिसमें मैंने 100 बनाया था कर्नाटका के सामने, और इंटरनेशनल फ्लाइट फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया T20 मैच खेल के। तो 9 दिन में मैं 2 फ्लाइटें ले चुका था इंटरनेशनल। और उससे पहले मैंने सिलेक्टर से जाके पूछा कि भाई 9 दिन में मैं 8 दिन मैच खेलने वाला हूँ और मतलब इंटरनेशनल फ्लाइट के साथ एक मैच क्या मैं रुक सकता हूँ, ये वाला मैच या रणजी ट्रॉफी कोई भी। तो मुझे क्या जवाब मिला? मुझे जवाब ये मिला कि अगर आपको टेस्ट मैच में कमबैक, क्योंकि मेरा वनडे बहुत अच्छा चल रहा था, मैन ऑफ द मैच मिल रहे थे, तो आपको खेलना पड़ेगा। आप नहीं खेलोगे तो आपका कमबैक नहीं होगा। आज मैं मुड़ के सोचता हूँ तो यार शायद मुझे लगता है कि ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए था और मुझे ब्रेक ले लेना चाहिए था। कौन खेलता है यार 9 दिन में से 8 दिन इंटरनेशनल फ्लाइट के साथ? हम जेटलैग की बात करते हैं, क्यों तब इनको समझ में नहीं आया मेरा जेटलैग? नहीं, 8 घंटे की फ्लाइट नॉर्मल है, कोई बात नहीं, आके खेलो आप दूसरे दिन। मैं खेला। खैर एनीवेज, सो जो बात है कि यार ये जो असली चीजें हुई है ना, उसको साइडलाइन कर दिया। और जब भी इरफान पठान की बात करो तो एक ही बात करो, क्योंकि भाई ये तो हमारा दुश्मन है, इसकी बात करो, इसके ऊपर डाल दो ना। असली बात कोई करने को तैयार नहीं है, ना कोई करेगा। जब भी हमारी किताब निकलेगी, इसमें डिटेलिंग आएगी, वो आती रहेगी। और वो अगर हुआ मौका तो मिलेगा लोगों को सुनने में, नहीं मिला तो यार जो चला गया, जो वक्त चला गया, उसको वापस नहीं ला सकते यार। जब मैं अभी थोड़े वक्त से ये लॉकडाउन में काफी इसके बारे में बात की है, जो पुराना वक्त है ये वो, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, आई एम वेरी हैप्पी, गॉड हैज बीन वेरी काइंड। मेरे वाले 3,500 रुपए महीना कमाते थे 14 घंटे करने के बाद, 14 घंटे काम करने के बाद मेरे वाले। और उसमें आप आधा घंटा साइकिलिंग जाना, आधा घंटा साइकिलिंग आना, ये भी जोड़ दो तो 15 घंटे उनका काम रहता था। उसके बाद भी उनका हाथ ना हमेशा ऐसे ही रहा है, कभी ऐसा हाथ नहीं रहा। और वो कभी भी ऐसा काम उन्होंने किया नहीं है कि जो गलत हो। ईमानदारी से पैसा कमाया। आज हमने भी हो सकता था मैं 500 विकेट लेता, हो सकता था मैं वनडे क्रिकेट में इंडिया का बेस्ट ऑलराउंडर बन सकता था। जो मेरे आंकड़े, अगर मैं उतने आंकड़ों से चलता तो भी इंडिया का सबसे बेहतर बन सकता था, लेकिन नहीं हुआ। वो बात गई एंड आई हैव नो रिग्रेट ऑन दैट। सपोर्ट मिलना चाहिए था, नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन रब का शुक्र है यार, आज ये जो कंट्री से खेलने को जो मेरे को इज्जत मिली है, जो प्यार मिला है, जो आज मेरा घर है, जो मेरी फैसिलिटीज है, ये रब का बड़ा शुक्र है यार। ये हर किसी के साथ होता नहीं है। हमारे पास, मुझे याद है मैं जूते अपने हाथ से सीता था, जो जूता अगर फट जाता तो मतलब वहां से लेके यहाँ तक जो जर्नी रही है, रब का बड़ा एहसान है। बहुत शुक्रिया। आई थिंक यू समड इट अप वेल। और आपने इसी के साथ एक और सवाल का जवाब अपने आप ही दे दिया है कि आपकी किताब कभी ना कभी तो आएगी। और किताब जिनको ना पढ़ना हो, मैं तो पढ़ ही लूंगा, लेकिन उसके साथ साथ आई एम श्योर एक बायोपिक के लिए बहुत सारे प्रोड्यूसर्स अब भी से लड़ाई करेंगे शायद कि भाई इरफान की बायोपिक मैं बनाऊंगा। So I'd be very curious for that, and that's wonderful, everything that you've said. And my intention here is to have a lovely conversation about your career, both ways, up and down, सब। ऐसा नहीं कि मैं चाहता भी हूँ कि आप किसी का नाम लो वगैरह वगैरह। I don't want to ruffle any unnecessary controversy. I'm just seeing our Irfan. हाँ, बस अभी जैसे आप नाम लेने वाले थे उनका, तब आपके इंटरनेट ऐसे बंद हो गए, ऐसे लगा मुझे। किसका नाम? जिसका नाम आपने नहीं लिया, जो बुक के लिए आपने छोड़ के रखा है, तो इंटरनेट अपने आप ही बंद हो गई। नहीं, मैं ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ। एनीवे, नो, माय पॉइंट वाज, मैं आपको ये कह रहा था कि आई डोंट वांट टू क्रिएट कंट्रोवर्सीज, आई ओनली वांटेड टू हैव अ नाइस कन्वर्सेशन विद यू, एंड आई एम डिलाइटेड दैट यू हैव हैड दैट, एंड इट्स ऑलवेज ग्रेट व्हेन वी लुक बैक एट दीस थिंग्स। और जिस तरह आपने कहा, आई मीन अगर आप सैकड़ों लोग ऐसे होंगे जिनको मतलब खेलने का मौका भी नहीं मिलता है, and the way you've managed a career like that with so many highs, I think that itself is something. ये जो आपने बात बोली ना कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको खेलने का मौका नहीं मिला, मैं आज सोच रहा था राकेश पटेल के बारे में। आप जाहिर सी बात है उसे जानते होंगे। राकेश पटेल ऐसा बॉलर था जो इंडिया को बहुत लंबे तक खेल सकता था। उसके पास कमाल की सीम पोजीशन थी। हमारे बड़ौदा का यार सबसे बेहतरीन गेंदबाज हुआ करता था और वो हमारा सीनियर भी हुआ करता था। वो इंडिया खेल सकता था, वो नहीं खेला। राकेश सोलंकी करके जो इंडिया अंडर 19 खेला, मेरे साथ बहुत क्रिकेट खेला है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। मुझे लगता था जब वो बैटिंग करता था, यार ये इसके पास इतना टाइम है, और 70 80 90 फर्स्ट क्लास मैचेस खेला है।
इंडिया अंडर 19 खेला, लेकिन इंडिया नहीं खेल पाया यार। तो ऐसे कितने लोग हैं, तो हम तो बड़े नसीबदार हैं यार, हमको खेलने का मौका मिला है। एब्सोल्युटली। आई मीन बार बार हम इन जो 3-4 नाम है जो बार बार आते रहते हैं, पद्माकर शिवरकर की बात कर लो, अमोल मजूमदार की अमोल बात कर मजूमदार, लो, राम नारायण की बात कर लो फ्रॉम चेन्नई, देयर आर सो मेनी क्रिकेटर्स जो इतने फर्स्ट क्लास खेलने के बाद भी नेवर गॉट अ चांस, व्हाटएवर रीजंस। बट या इट्स समथिंग वी शुड लुक बैक एंड बी थैंकफुल फॉर, जिस तरह आपने कहा। एंड यस, द बुक इज कमिंग, द मूवी विल डेफिनेटली कम, आई एम श्योर। और साथ ही आई होप देयर इज अ करियर इन पॉलिटिक्स, एंड आई से दिस इन द राइट वे, क्योंकि जब भी हम किसी को कहते हैं ना कि आपका तो पॉलिटिक्स में करियर होना चाहिए, ऐसे हम कह देते हैं कि भाई आप तो बड़े बड़े जलेबी टाइप हो, आप तो बड़े ट्विस्टेड हो, आप में मतलब वो स्ट्रीट स्मार्टनेस है, एक नेगेटिव कॉनोटेशन आ जाता है इफ यू टेल समबडी। बट आई थिंक इफ एनीथिंग, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि वी नीड द राइट काइंड ऑफ पीपल इन 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 एडमिनिस्ट्रेशन इन पॉलिटिक्स एज वेल। तो आई होप के पॉलिटिक्स के बगैर भी काम कर सकता हूँ मैं। और मैं एक थोड़ा डबल साइडेड मार देता हूँ कि जिसने क्रिकेट खेला है इतने साल, वो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में MA BA कर चुका है, तो आई थिंक उसके हिसाब से you've done your bachelor's, so I think you'll be able to, you'll be ready for it. Anyway, so this is the fun part now. मैं मेरे सभी गेस्ट के साथ एक रैपिड फायर खेलता हूँ इरफान, and I have no doubt there will be enough fire in this. So are you ready for your rapid fire? रैपिड फायर में कोई मतलब चाय कॉफी का तो ऐसा कुछ भी बिल्कुल नहीं। और जो जो उस टाइम के ऑलराउंडर्स थे, वो ऐसे सवालों का जवाब थोड़ा बेटर हैंडल कर पाते थे। आज के ऑलराउंडर्स की छोड़ो, बात ना करें हम। चले, let's move with the rapid fire. It's a good one. I hope you enjoyed. So Irfan, let's go in 3, 2, 1. If you weren't a cricketer, what do you think you would have been? आई थिंक या तो मेरे वालिद चाहते थे मौजिन या डॉक्टर, और खुदा का शुक्र मैं दोनों में से एक भी नहीं बना, बहुत बुरा होता। All right. If you had to pick one cricketer to spend the lockdown with, who would you pick? इंटरनेशनल क्रिकेटर, Any cricketer. इंटरनेशनल क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा, एंड डोमेस्टिक क्रिकेटर राकेश सोलंकी। Brilliant. All right. If you were given one superpower, which one would it be? इनविजिबल होके मैं चाहता हूँ कि यार इनविजिबल होके ना रात को निकलूं और कुछ ऐसे काम करूं जो जिसके बारे में बात ना हो, और चुपचाप ये आपने बहुत ही काम भी हो जाए। ये बहुत अजीब सा आपने एक एग्जांपल दिया है। आई एम श्योर यू मीन वेल, लेकिन ये आप ऐसे काम करूं जिसमें लोगों का फायदा हो। बिल्कुल इनविजिबल बिल्कुल। होके। So that's what. Yeah, brilliant. All right. One food item you cannot get enough of. I think biryani. First class. Best film or web series you've seen of late? There are 3. बोलिए. Money Heist. Yeah. Urtugul Ghazi. And the third one is Patal Lok. I just mentioned that before I came on. Patal Lok was really good. Yeah, Money Heist में थोड़ा बोर हो गया, but ठीक है, शायद मेरे लेवल का इंटेलिजेंस नहीं था. How can you get? I know. I've heard this. I've seen this reaction before. अब क्या? Okay, because of you, I'll try it again. ठीक है? I will give it another shot. Not even a single episode of Money Heist I was bored. अच्छा, चलो ठीक है. Let me try again. I will try only for you. I will try again. All right. Next question. Best captain you played under? Rahul Dravid. Biggest influence on your cricket career? My brother. Okay. Smartest cricketing brain according to you? Dhoni. Who has the best sense of humor in cricket according to you? Apart from me, Harbhajan Singh. All right. One holiday destination you can visit again and again? Kashmir. Okay. One batsman you enjoyed bowling to? यार enjoyment कैसे होगा किसी bowler का यार? एक कोई तो होता है ना जो you feel कि this is my bunny, इसको तो मैं मतलब even today if I roll my arm over I'll get him. Afridi. One batsman you hated bowling to? यार सबसे मुश्किल बैट्समैन 2 थे, एक एडम गिलक्रिस्ट, छोटा डालो कट पुल में लगेगा, आगे डालो हवा में मार देगा, और तो ये बहुत मुश्किल था, और दूसरा इंजमामुल हक। ऐसा लगता था यार उनके पास बहुत टाइम है। Brilliant. One spell from your career you remember most fondly? इंटरनेशनल क्रिकेट में आई थिंक 2007 वर्ल्ड कप यार फाइनल, मतलब वो दिल के बहुत करीब है। एक एक बॉल मुझे याद है, मैं कौन से एरिया में फील्डिंग कर रहा था वो भी मुझे याद है, और मैच ऐसा पूरा सीसूर की तरह जा रहा था। तो आई थिंक वर्ल्ड T20 फाइनल में। Brilliant. One sportsman from another sport that you would love to meet someday?
Yeah, I had my wish to meet Muhammad Ali. Okay. All right. One thing outside of cricket that you are better than Yusuf. Yeah, he doesn't believe that, but I'm a better driver. I'm Really? He better doesn't driver believe. than him. उसने 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 मुझे सिखाया ड्राइविंग, मुझे मेरे भाई ने ही सिखाई है, Hmm. बट मेरे को लगता है आई एम अ बेटर ड्राइवर देन माय ब्रदर एंड आई एम अ बेटर टीम मेकर. मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ. So ये अगला सवाल you can predict. One thing outside of cricket that Yusuf is better at than you. कुकिंग. Okay. And you agree to that or you disagree to that? No, I agree. You agree. He's Okay. better. Brilliant. Brilliant. Toughest bowler you ever faced? I think it wasn't for very long, but Mendes, Ajanta Yeah, Mendes. sure. Yeah. One bowler from today's generation that you would have loved to bowl in tandem with. Bumrah, yaar. I would love to be, have a partner with Bumrah. He's bowling from other end, I'm bowling from one end. And, he's not giving away anything, trying to take wickets. I am bowling with the new ball, trying to take wickets. I think that would have been something. Brilliant. All right. Time to pick. Bowling with the new ball or batting at number 3? I think I know this. Bowling with the new ball. Touring Australia or touring Pakistan, what was more challenging? Australia. Touring Australia is more challenging. Okay. Because 50, they play very aggressive cricket anyways. Okay. 50 over cricket or 2020 cricket? I think T20. All right. I think I know this one as well. Man of the match in the 2007 World T20 final or the hat-trick in Karachi? What is the sweeter memory? Man of the match, T20 World Cup final. Okay. Coaching or commentary? Oh! That's a tough one, yaar, Ronak. ये बहुत टाइम लगाया लगता है तूने. नहीं, ये तो बहुत मतलब ये तो इजी है. सवाल पूछना तो आसान है. I think coaching. I really enjoy seeing people grow. So coaching. Brilliant. Twitter or Instagram? Twitter. Okay. Smith or Kohli? Any day Kohli. Red ball or white ball? Yeah. Love to play red ball. Love to watch white ball. Okay, brilliant. Nice answer. First thing that comes to mind when I say the IPL? Change Indian cricket. Baroda. Can do a lot better in terms of cricket. J&K. Very close to my heart in terms of working with the boys. All right. 2007 World T20. पहले चैंपियन को हमेशा लोग याद करते हैं. तो चैंपियन. MS Dhoni. Great achiever. Greg Chappell. Misunderstood character. Wonderful. Virat Kohli. One line में बोलना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन I would have loved to play under Virat Kohli captainship because he's the kind of captain who backs his player. He goes out of the way to back his player. So I think he's he's actually जो लीडर का डेफिनेशन होता है ना, वो है. He's a leader. All right. Rahul Dravid. Most underrated cricketer in the world. Yeah. And I think थोड़ा मैं rapid fire pause कर रहा हूँ. The one thing I like that you said is best captain for Dravid. बहुत बार मैं भी ये जवाब देता हूँ कि people पूछते हैं कि who is the most underrated captain? Cricketer तो छोड़िए, but I said Dravid is actually one of the most underrated captains of Indian cricket. I want you to sort of elaborate on that. Don't you think he was a fine captain to play under? 100%. Yeah, he was a very, very clear. Whatever he wanted for the team. See, every captain has their way, right? There are captains who thinks differently. Obviously, Rahul Dravid used to think differently as well. But he was very clear in terms of his communication. यार आपको ये आपका रोल है और आपको उस हिसाब से चलना है और and whatever he wanted to do everything because उन्होंने क्रिकेट भी वैसे ही खेला यार. वो विकेट कीपिंग करने को तैयार थे, वो ओपन करने को तैयार थे, वो नंबर 3 करने को तैयार थे. लोग उनको बोलते थे यार वो वनडे क्रिकेट में इतना अच्छा क्रिकेटर नहीं है लेकिन 10,000 रन बना चुके हैं. सो वनडे क्रिकेट में भी यार वो इतने जबरदस्त टीम मैन थे, तो उनका कप्तानी का तरीका भी टीम के लिए था. तो आई थिंक उस मामले में बहुत जबरदस्त थे और कोई भी दिक्कत होती थी वो ऐसे कैप्टन थे जैसे बहुत कैप्टनों के साथ उनके साथ कम्युनिकेशन करना, उनको अगर आपको पकड़ना है तो मुश्किल हो जाता है कि यार कहाँ है, कहाँ गायब हो गए. बात करनी है तो बात करने को वो मिलेंगे नहीं, जब उनको बात करना है तो एकदम सब उनके पास फोन भी आ जाते हैं. लेकिन ये
कप्तान ऐसे थे कि आप इनको रात को 2 बजे भी इनको मैसेज डालो, उनको आप अगर परेशान हो तो आप जा सकते हो बेझिझक होके, वैसे कप्तान थे वो। एंड आई थिंक Brilliant. कप्तानी का सबसे ज्यादा जरूरी कि आप कम्युनिकेशन हमेशा हर प्लेयर के साथ रखें। Brilliant. Coming back to the rapid fire, first thing that comes to mind when I say Twitter trolls. फेक। Cricinfo. क्या है? Cricinfo. Cricinfo, my first experience, you know, to go First thing that live. comes to mind. Joe, yeah, whatever you say. First thing that comes Yeah, to mind. my first experience to Okay. actually go and talk about cricket openly, you know, apart from doing commentary. Oh yeah. It was you were with us before you were with any other broadcaster. हमने Yes. launch किया है भाई इरफान पठान को And मीडिया I में. always appreciate that. I always appreciate that. The reason that कोई भी चीज आप पहले ही करते हो, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ यार, सौरव गांगुली मेरा हमेशा स्पेशल कप्तान रहेगा, बिकॉज वो पहले कप्तान था। Yeah. और जब पहला कप्तान होता है वो एक राह दिखाता है, और उनमें वो काबिलियत थी, मतलब हर लड़के को राह दिखाने की, हर लड़के को सपोर्ट करने की। सो आई थिंक क्रिकेट के साथ भी वैसी बात होती है कि मेरा वो पहला स्टेप था कमेंट्री की तरफ। Wonderful. And lastly, first thing that comes to mind when I say me. Good man, Thank you, my friend. good cricketing knowledge, Oh, बाप रे. good commentator, and I think you should be Yes, working we with did us some more. radio. We did some radio. Yeah, I remember. I forgot Yes. about that. मैंने So- post so तो डाला था. that's why I said you should be coming with us and working as well. Zarur, as soon as cricket is back. Bas, it's only a matter of time, I'm sure. Irfan, this has been so much fun. Thank you so much. I can't thank you enough, and this has been one of the most enjoyable chats I've had. I hope this has been fun. Father's Day पे आपने time निकाला है, so thank you very much. A very happy Father's Day to you. I hope your little one is doing well. Happy Father's Day to everyone as well. ये हम father लोग को थोड़ा credit कम मिलता है, लेकिन हम लोग खुद ही को दे देंगे credit. I really enjoyed it. I really enjoy my chat as well. Thank you so much for having me, और hopefully जल्दी मुलाकात करते हैं भाई. बिल्कुल. Take care. See you soon. Bye, Irfan. You too. Take care. Bye. 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 All right, hope you guys enjoyed that. Irfan in fine form, and that was a brilliant chat. The whole episode, in case you missed it, I would highly recommend watching it again, especially Irfan's initial conversation. जिस तरह इतनी खूबसूरती उन्होंने कहा कि why he feels that it's important for him to speak out on issues and whatnot. तो थोड़ी सी serious बात हो गई, but I think it was important that we have these conversations whenever we do get the chance. So yeah, it will be up on IGTV as well as on YouTube, hopefully by the end of the day or latest by tomorrow. And yeah, do join me for another one of the Insta Lives coming up next week. So you will get the post up sometime in the week. And I hope to see all of you at that point. And then stay safe and take care. Bye-bye.